Hello everyone, welcome to Ritika Tutorials. Today I will talk about cell, the unit of life. So I will share the NCERT chapter on cell, the unit of life first. I will discuss various points from this chapter which will help you in your NEET exam and also those who are in 11th and 12th standard. So when you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? तो जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें living organisms as well as non-living things दिखेंगे. The difference, or we can say the answer to this question, is the presence of basic unit of life, the cell in all living organisms. तो इसका आंसर है presence of basic unit of life, which is what cell. तो living organisms में cells पाई जाती हैं और cells को हम basic unit of life कहते हैं क्योंकि ये equipped है all the cellular organelles which are designed for performing various functions which is needed by a living organism to survive. All living organisms, or we can say that all organisms are composed of cells. सभी organisms का जो body है वो cells से मिलकर बना है. Some are composed of a single cell and are called unicellular cell organism. Uni means one, cellular means cell. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है तो उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जबकि दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक नहीं बल्कि बहुत सारी सेल्स से उनकी बॉडी बनी होती है तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे. तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. One is of unicellular organism and another is of multicellular organisms. Multi means many, cellular means cells. Now we will see the question what is a cell, and we'll find out the answer in this section. Unicellular organisms are capable of, first point is independent existence, and second point is performing the essential functions of life. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये क्षमता होती है कि वो स्वतंत्र जीवित रह सके या स्वतंत्र एग्जिस्ट रह सके, and they are also capable of performing the all the essential functions which are needed for a life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. So anything less than a complete structure of a cell means अगर कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए कैपेबल नहीं हो पाएगा. तो अ सेल शुड बी देयर विच इज इक्विप्ड विद ऑल द थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस नीडेड फॉर द लाइफ. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. इसीलिए कहा गया है कि सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल जो पाई जाती है वो उसे डिफरेंस करती है फ्रॉम द इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से. Antony von Leeuwenhoek, he was a scientist who first saw and described a live cell. ठीक है, तो ये वैज्ञानिक जो थे इन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. अब जब सेल की डिस्कवरी हुई तो सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने डिस्कवरी करना शुरू कर दी. तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. तो इन वैज्ञानिकों ने जब सेल को देखा तो सेल तो बहुत ही छोटा है स्ट्रक्चर में या उसका शेप बहुत ही छोटा है, तो हाउ दे कुड सी अ सेल? Obviously using some sort of microscope, but microscopes were not there in those days. So they have grounded the piece of glasses and have enlarged the shape of the cell to see its structure.
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गया, और जब माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन में और भी इम्प्रूवमेंट किया गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी स्ट्रक्चर के, जैसे कि सेल के अंदर देखने की क्षमता रखता है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका शेप क्या है। तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक सिंपल माइक्रोस्कोप से धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, और जिसने डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ऑफ सेल की एनालिसिस किया। नाउ इन सेक्शन 8.2 वी विल डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी। सेल के बारे में बहुत सारी धारणाएं रखी गई या बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए कि सेल है क्या, और ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनमें किस तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। तो उसके बेसिस पे एक थ्योरी बनाई गई जिसे कि सेल थ्योरी कहते हैं। तो दो साइंटिस्टों का नाम इसमें मेनली आता है। इन 1838 मैल्थियस शील्डेन अ जर्मन बोटेनिस्ट। तो ये शील्डेन जो थे ये जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया और ये थ्योरी बनाई कि सभी प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो सभी प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और ये सेल्स मिलकर टिश्यू ऑफ द प्लांट बनाते हैं। और हम जानते हैं कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएगा। At about the same time, Theodore Schwann in 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो ये श्वान ने 1839 में एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया और ये बताया कि एनिमल सेल्स में एक आउटर बाउंड्री होती है जो कि थिन लेयर होती है और उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये दो साइंटिस्ट जो थे, श्लाइडन जिन्होंने प्लांट सेल्स को एग्जामिन किया और श्वान ने एनिमल सेल्स को एग्जामिन किया। तो एग्जामिन करके जो इन्होंने पॉइंट्स बनाए उन्हें थ्योरी का नाम दे दिया जिसे कि हम सेल थ्योरी कहते हैं। He also Schwann also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. तो अब हम 11th-12th में आपने सेल्स के प्लांट सेल्स का प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो उसमें देखा होगा कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल के प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये एक जो यूनिक कैरेक्टर है वो प्लांट को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करता है। प्लांट में सेल वॉल है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट में आउटर बाउंड्री सेल वॉल है और फिर उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। So on the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो श्वान ने क्या किया, अब जो ये पॉइंट्स बनाए उन्होंने based on their observation of the plant cells and animal cells, he made a hypothesis that the bodies of animals and plants, जो बॉडी है एनिमल और प्लांट की, वो सेल्स से के कंपोजिशन से बना है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बना है। Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. फिर इन दोनों साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट और एनिमल्स बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि नई सेल्स कैसे बन रही हैं। So Rudolf Virchow in 1855, he was the first one or scientist who explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. तो इन्होंने बताया कि सेल्स जो है वो डिवाइड होती रहती हैं और उनके डिवीजन से ही
नए सेल्स बनती हैं या नई सेल्स की उत्पत्ति होती है। तो दैट्स वाई ये सेंटेंस उन्होंने लिखा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब जो पहले से वहां पे प्रेजेंट हैं सेल्स, उनसे नई सेल्स जो है बनती हैं। और उनकी लैंग्वेज में उन्होंने जो लिखा था वो ऐसा लिखा था, omnis cellula e cellula। omnis cellula e cellula means new cells are formed from the pre-existing cells. Now he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. तो श्लाइडन एंड श्वान ने एक सेल थ्योरी दी जो कि कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि नई सेल्स कैसे बन रही हैं। जब रुडोल्फ वर्चॉव ने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो फिर उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, एक फाइनल ड्राफ्ट दिया सेल थ्योरी का। द सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज। तो अब आज जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं उस पे हम क्या समझते हैं वो यहाँ बताया गया है इन 2 पॉइंट्स में। द सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, first point is all living organisms are composed of cells and products of cells। जितने भी living organisms हैं उनकी बॉडी सेल से और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनी है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स बन रही हैं वो पहले से प्रेजेंट सेल्स के डिविजन्स के द्वारा बन रही हैं। सो दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी इसलिए बनाई गई क्योंकि पहली बार सेल को एग्जामिन किया गया और सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बताया गया और उस पे कुछ पॉइंट्स दिए गए जिसे कि एक थ्योरी बना दिया गया और सेल थ्योरी हम जिसे आज कहते हैं। नाउ अब बात आती है सेल के बारे में जानने की, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें हम ये जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। So you have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope। तो बायो प्रैक्टिकल में आपने शायद किया हो, अनियल पील में सेल्स को ऑब्जर्व किया हो जो कि प्लांट सेल का एग्जाम्पल हो गया, और ह्यूमन चीक सेल्स एनिमल सेल का एग्जाम्पल हो गया। तो सेल की संरचना या स्ट्रक्चर देखने के लिए ये प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं जनरली लैब्स में, in order to understand the basic structure of the plant and animal cell. Let us recollect their structure। चलिए फिर इसके structures को देखते हैं। The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane। तो जब हम अनियन पील की बात करते हैं तो हम पील को हम निकालते हैं नाइफ और फोर्सिप की हेल्प से, और उस पील को रेक्टेंगुलर शेप में कट करके स्लाइड पे रखते हैं और हम उस पे कुछ स्टेन डालते हैं, से फॉर एग्जांपल सैफरन स्टेन डालेंगे, और फिर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उस प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी। एक तो हमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखेगी, तो सेल वॉल के नीचे हमको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम कैसे चीक सेल्स निकालेंगे, उसके लिए हम कुछ टूथपिक यूज कर सकते हैं और अपने माउथ की इनर वॉल से चीक सेल्स को स्वैप के रब करके निकालेंगे और उसे स्लाइड पे स्मेयर के फॉर्म में फैलाएंगे, एंड देन वी विल ऑब्जर्व दोस चीक सेल्स आफ्टर स्टेनिंग विथ मिथिलीन ब्लू अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। तो जब हम ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो हमें पिक्यूलियर स्ट्रक्चर दिखेगा आउटर बाउंड्री के फॉर्म में, विच इज अ सेल मेम्ब्रेन। अब जब हम सेल के अंदर देखेंगे तो हमको ब्लू कलर न्यूक्लियस नजर आएगा, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेगा न्यूक्लियस के फॉर्म में। तो हमें प्लांट सेल जब हमने देखा तो हमें सेल वॉल दिखी, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, एंड ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी दिखेगा और एक बिग वैक्यूल भी दिखेगी। जबकि एनिमल सेल को हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें
outer boundary दिखेगी which is a cell membrane, and inside the cell we could see the nucleus under the microscope. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें ये इतनी चीजें दिखेंगी प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर. सो दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, अब हम एनिमल न्यूक्लियस की बात करें तो क्या है, द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल विच इज व्हाट, डीएनए. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होगा. डीएनए विच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर सीरीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है. Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic. तो यहाँ पे सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल की और एक कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल की. तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता है. जैसे कि अगर हम सिंपल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को या किसी भी बैक्टीरिया को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्टली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में. सो न्यूक्लियस विच इज, or we can say the genetic material which is not bounded by a distinct nuclear membrane is called as a nucleoid in the case of the prokaryotic cells such as bacteria. जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में हमको न्यूक्लियस एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड दिखेगा. जैसे कि अगर हम चीक सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने मिथिलीन ब्लू से स्टेन किया तो हमको डेंस ब्लू कलर न्यूक्लियस दिखेगा और एक सर्कल और स्फेयर के फॉर्म में दिखेगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहेगा. नाउ इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. दूसरी क्वालिटी और प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की कि उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये वॉल्यूम ऑफ द सेल बनाता है. नाउ द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज in both the plant and animal cells. साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती हैं और जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती हैं. Now various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो उसको लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. नाउ बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेल्स कॉल्ड as distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. तो न्यूक्लियस हो गया, एक आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन हो गई और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. वो क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स हैं. नाउ अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की. प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं. तो ये भी एक और डिफरेंस हो गया. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. नाउ अब बात आती है राइबोसोम्स की. राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं एंड राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं
और ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल ऑर्गेनील हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए राइबोसोम्स का की जरूरत प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल दोनों को होती है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. तो सेल के अंदर राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स के केस में उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा। तो जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो वहां पे हम दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ऐसा रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके वॉल्स पे राइबोसोम्स स्टडेड होते हैं या राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिस पर की प्रोटीन सिंथेसिस होगी। Now, animal cells contain another non-membrane bound organelles called as centriole, which helps in cell division. जब नई सेल का फॉर्मेशन होता है, नई सेल्स का फॉर्मेशन माइटोसिस या सेल डिवीजन प्रोसेस में होगा, उस सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सेंट्रियोल आर देयर विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड दे आर ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब कि उनके भी उनके स्ट्रक्चर में भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है या दे आर ऑल्सो लैकिंग द मेम्ब्रेन। नाउ सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल्स जो है, ऐसा नहीं है कि सभी सेल्स का साइज, शेप और उनकी जो एक्टिविटी है वो सेम हो। सेल्स डिफर ग्रेटली इन, सेल्स का साइज, शेप और एक्टिविटी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माइकोप्लाज्मास की बात करें, माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट सेल्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिए जाए और पूछा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल्स, जिसमें एक ऑप्शन माइकोप्लाज्मा भी दिया हो, तो माइकोप्लाज्मा वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, mycoplasmas, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length. तो उनकी लेंथ ही सिर्फ माइक्रोमीटर डायमेंशन में होती है, विच इज ऑफ अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जिसको भी हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया का जो लेंथ है दैट कुड बी फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो 3 से 5 माइक्रोमीटर जो है बैक्टीरिया का, हम देख रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा से के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब माइकोप्लाज्मा क्या हो गई, स्मॉलेस्ट सेल हो गई। नाउ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो अब एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल, एंड द ऑप्शंस आर देयर लाइक माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, egg of an ostrich. So single cell, sorry, egg of an ostrich. So the correct answer would be the egg of an ostrich. Now among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में हमें पता है कि ब्लड में रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो अराउंड 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। सेल्स का जो शेप है वो वेरी करता है, तो कैसा कैसा हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलम के फॉर्म में हो सकता है, क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है, या सिंपल एक थ्रेड लाइक हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा इरेगुलर शेप भी सेल्स का हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो जिस तरीके का वो फंक्शन सेल्स परफॉर्म करती हैं उसके बेसिस पे भी सेल का शेप वेरी करता है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, हम उसमें देखेंगे कि सेल्स का शेप कैसा कैसा है।
अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो कोई रेड ब्लड सेल्स को अगर हम देखेंगे तो रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो राउंड एंड बाई कॉनकेव इसका 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 स्ट्रक्चर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में हम देखेंगे कि इसका शेप अमीबॉइड टाइप होता है, तो अमीबॉइड अमीबा का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर से इसका रिजेंबल होता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसे हमने अमीबॉइड सेल स्ट्रक्चर कह दिया। कॉलमनर सेल्स को यहाँ पे देखें तो इनका स्ट्रक्चर कॉलम के से सिमिलैरिटी रखता है, इसलिए इन्हें हमने कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का नाम दे दिए। सो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स दे आर व्हाट, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। तो नर्व सेल में आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उससे कई सारे ब्रांचेस अराइज हो रहे हैं। तो नर्व सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। एंड देन ट्रैकीट का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लांट सेल्स में ट्रैकीट्स पाई जाती हैं तो उसका स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होता है। मीजोफिल सेल्स जो कि लीव्स में पाई जाती है, इनका शेप अगर हम देखेंगे तो वो राउंड एंड ओवल शेप होता है। एंड सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है देख सकते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट के को रिजेंबल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे अब हम। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मास एंड पीपीएलओ और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ को स्टडी करते हैं। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एक तो इनका बेनिफिट ये है कि ये स्मॉल इन शेप होते हैं और ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। इसलिए हम लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस जो है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। Now these prokaryotic cells vary greatly in shape and size. इनका भी स्ट्रक्चर शेप और साइज में काफी वेरी करता है। अगर हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो बैक्टीरिया वेरियस शेप्स में हमें देखने को मिलेंगे। कुछ बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो रॉड लाइक होता है, तो उन्हें हमने एक कॉमन कैटेगरी के अंडर रखा है जिसे कि हम बैसिलस कहते हैं। तो बैसिलस आर द बैक्टीरिया विच आर हैविंग द रॉड शेप। नाउ कॉकस, कॉकस वो बैक्टीरिया है जिनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। विब्रियो, विब्रियो बैक्टीरियाज आर हैविंग कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, हेंस दे आर कॉल्ड एज द विब्रियो। नाउ स्पाइरलम बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज स्पाइरलम बिकॉज दे हैव द स्पाइरल शेप। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो फंडामेंटल बेसिस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में समान ही होता है। इवन दे आर हैविंग और दे एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी इन देयर शेप्स एंड फंक्शंस। नाउ all प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताई जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो समानताएं रखती हैं। जैसे कि उन सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है या सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करने वाली आउटर बाउंड्री इज व्हाट, सेल वॉल। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, दैट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म, व्हिच इज हैविंग सेमी फ्लूइड नेचर। नाउ देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड यहाँ कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड and not enveloped by a nuclear membrane. Now, in addition to the genomic DNA is comprised of the single chromosome or the circular DNA. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीनोमिक डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है और उसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं।
Like many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें कि एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द जीनोमिक डीएनए, और इस स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड्स नाम देते हैं। तो हम प्लाज्मिड्स को ये भी कहते हैं कि दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल्स। Now the plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. तो अगर ये प्लाज्मिड्स स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया में है, तो इनका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, इसलिए दे आर हैविंग देयर एग्जिस्टेंस इन सच बैक्टीरिया. So what are those characters which it confers to that bacteria is the resistance to antibiotics. तो वेरियस एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेजिस्टेंस शो करते हैं बैक्टीरिया, सो as to enable them to survive in the presence of such antibiotics is conferred by these plasmid DNA present in them. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब इन प्लाज्मिड डीएनए का यूज हम देखेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में होता है. Now, nuclear membrane is found in eukaryotes, as I have already said. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for the ribosomes. तो no organelles like the ones in eukaryotes, मतलब कि हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ एक ऑर्गेनील है जो कि राइबोसोम है, जो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. एंड राइबोसोम्स आर व्हाट? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स which are found in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cells. Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि हम बोलते हैं inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane is called as mesosomes. प्रोकैरियोटिक केस सेल्स के केस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कि हम मीजोसोम्स कहते हैं. और ये मीजोसोम्स कैसे बनता है? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से. तो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होके इनफोल्डिंग्स बना लेती है जिसे कि हम मीजोसोम्स कहते हैं. मीजोसोम्स का भी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर होने के कारण इसका भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में. Now, the one important function is of they help in the respiration. So that we will study in another lecture. Here, few diagrams are given. Now you can see here a typical eukaryotic cell जिसमें कि बाहर outer boundary cell membrane है. Inside the cell ये एक central nucleus है जो कि double nuclear membrane से, और we can say that double layered nuclear membrane से surrounded है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है विद द ट्यूब्यूल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हम देख रहे हैं कि ब्लैक कलर डॉटेड स्ट्रक्चर है. These black color dotted structures are what? Ribosomes. As I said that few ribosomes are found in the cytoplasm, some are found on the endoplasmic reticulum. When they are found on the ER, then such ER are called as the rough ER. ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं ER के वॉल पे. So they are having an important function in the protein synthesis. The other structures which we could see inside the eukaryotic cell are mitochondria. तो mitochondria power house of a cell है. और यहाँ पे हम Golgi bodies हम देखेंगे. That is also in a tubular form. ना यहाँ पे देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर अराउंड 10 से 20 माइक्रोमीटर या 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज में वेरी करता है. टिपिकल बैक्टीरियल शेप जो है, यहाँ पे बैक्टीरियल शेप स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहाँ पे बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे हम कुछ सेल वॉल पर आउटर अपेंडेजेस देख रहे हैं. दे आर व्हाट? फ्लैजेला विच आर प्रेजेंट इन द टिपिकल बैक्टीरिया. And typical bacterial shape vary in size from 1 to 2 micrometers. Now here, PP yellow or pleuropneumonia-like organism structures are present. You can see some spheres are present, some circular bodies are present.
and their shape or their length is around zero point 0.1 micrometer. Now viruses are having are what we can say that they are having very less size of around 0.02 to zero point 0.2 micrometer. So the here few rough diagrams are given in order to make a comparison between the eukaryotic cell with other organisms. So this is all for now. I will discuss in continuation of this unit in my next lecture. So I request all of you, if you have not subscribed my channel till now, please do subscribe so that you will get all the series of the lectures based on the NCERT book needed or helpful for the NEET exam preparation. Thank you all.